آج کے دور میں کینسر ایک ایسا مرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی خطرناکی، جس کی سنگینی سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو واقف نہ ہو۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کینسر کتنا خطرناک مرض ہے، جس کو لگ جائے اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس لیے منشیات سماج کا کینسر ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، منشیات جس کو ہم کہتے ہیں نا، منشیات یعنی نشہ آور، نشہ لانے والی چیز، یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کھانے والا سامان بھی ہو سکتا ہے، وہ سونگھنے والا سامان بھی ہو سکتا ہے، وہ چبایا جانے والا سامان بھی ہو سکتا ہے، اسے بیڑی سگریٹ کی طرح سے جلا کر کے دھوئیں کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ انجیکشن کی شکل میں بھی لیا جا سکتا ہے، وغیرہ کسی بھی شکل میں کوئی بھی سامان کھانے پینے چوسنے یا مثال کے طور پر انجیکشن کی شکل میں، پاؤڈر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اگر اس کے استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہو، یعنی انسان کی عقل، انسان کی سوجھ بوجھ متاثر ہو جاتی ہو، اس کا سر گھومنے لگتا ہو، اس کا دماغ ناچنے لگتا ہو، اور وہ بالکل ایسا لگتا ہو کہ وہ تیر رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، وہ لڑک رہا ہے، یا مثال کے طور پر چکرا رہا ہے اس کا دماغ، تو ایسی تمام چیزوں کو منشیات کہتے ہیں، نشہ پیدا کرنے والی چیزیں۔ آپ یاد کر لیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 4 6 8 باتیں جو بھی میں عرض کر سکوں گا ایک وقت میں، مناسب وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے بارے میں، آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ شراب کا حکم کیا ہے، جوئے کا حکم کیا ہے، شراب پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے، جوا کھیل سکتے ہیں نہیں کھیل سکتے، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ ان کو جواب دیجئے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع کی چیزیں ہیں، یعنی کیا مطلب، کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں لوگوں کو کہ اس میں فائدہ ہے، اس کے اندر نفع ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو فلاں بینیفٹ ملتا ہے، فلاں بینیفٹ ملتا ہے، کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا سوچنا ہے کہ اس میں کچھ نفع کی چیزیں ہیں۔ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اللہ فرماتا ہے لیکن ان دونوں چیزوں کا گناہ جو ہے ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی یہ آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ ہے جو شراب کے بارے میں اتری ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف اتنا کہا گیا کہ ان دونوں کے اندر گناہ بہت بڑا ہے اور اس کے اندر کچھ فائدے ہیں، لیکن وہ فائدے کم ہیں، فائدے چھوٹے ہیں، گناہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہیں۔ یعنی صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کہا، شراب سے منع نہیں کیا، شراب کا استعمال کرنا کتنا خطرناک ہے وہ بات اس کے اندر نہیں بیان فرمائی، پورے طور پر اسٹاپ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ پہلی آیت کریمہ یہ ہے جس میں اتنی بات کہی گئی کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر کچھ فائدہ بھی ہے تو گناہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اچھا جناب علی، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جو لوگ اونچی طبیعت کے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے صدیق اکبر یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہ اسلام میں شراب پی ہے، نہ اسلام سے پہلے جب میں مسلمان نہیں تھا، جاہلیت والا جو دور تھا میں نے اس میں بھی شراب نہیں پی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اچھا آپ اسلام کی حالت میں شراب آپ نے نہیں پی ہے، اسلام سے پہلے آپ نے شراب نہیں پی، تو آخر اب اسلام سے پہلے جب شراب حرام نہیں تھی تب آپ نے شراب کیوں نہیں پیا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آدمی شراب پیتا ہے، اگر آدمی نشہ کرتا ہے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے،
बदअमल हो जाता है, उसे कपड़े का पता नहीं, उसे सतर का पता नहीं, उसकी शर्मगाह खुली है या बंद है पता नहीं, वो किसी को गाली दे पता नहीं, वो अपनी माँ बाप से कैसी बेहुदा बातें करे उसे कोई पता नहीं। इसलिए मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहता हूं, असूल इर्ज़ी, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहता हूं। इसलिए मैंने कभी इस्लाम से पहले भी शराब नहीं पी और इस्लाम की आमद के बाद भी शराब मैंने नहीं पी है। तो जब ये आयत करीमा उतरी, सिर्फ इतना कहा गया कि शराब के अंदर गुनाह ज्यादा बड़ा है, तो उस वक्त जो अच्छी मेरे भाइयों ऊंचे अखलाक वाले थे, आज़्म व हिम्मत वाले थे, ज्यादा शराफत वाले थे, ऐसे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। लेकिन चूंकि हराम नहीं किया गया था, इसलिए शराब पीने का सिलसिला चलता था। शराब लोग पीते थे, पिलाते थे, मेहमानों को देते थे, दावत लेते थे, तो खाना खिलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद, तकरीम करने के बाद मेरे भाइयों शराब भी पेश किया करते थे। खासतौर पर पुरानी वाली शराब जो मटके में, घड़ों में भर भर के रखी जाती थी, ताकि वो ज्यादा पुरानी हो जाए। ज्यादा पुरानी हो जाने के बाद ज्यादा मजेदार होती है। इस तरह से वो लोग अपने मेहमानों को शराब पेश किया करते थे। ये आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, मुनशियात की असल क्या है? ये शराब है, खम्र है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। क्या हुआ मेरे भाइयों? अब हुआ ये कि शराब हराम तो नहीं की गई, सिर्फ कहा गया कि गुनाह बहुत ज्यादा है। शराब लोग पीते थे। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबे किराम की दावत ले ली हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। याद रखना इस वाक़े को, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दावत ले ली सहाबे किराम की, चंद लोगों को खाने पर बुला लिया, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया और खिलाने पिलाने के बाद उनको शराब पिला दिया। शराब पिला दिया। शराब पिलाने के बाद लोग नशे में आ गए। किसी को पता नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, नमाज में है या नमाज के बाहर है, कुरान पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है तो क्या तिलावत कर रहा है, दुआएं पढ़ रहा है तो कौन सी दुआ पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। इंसान की अकल जब सलामत नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, मामला यही हुआ। हजरत अली बिन अबी तालिब बयान करते हैं कि जब सब लोगों ने खाना खा लिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ की दावत में खाना खा लिया, पानी पी लिया, शराब पी लिया, उसके बाद मगरिब की नमाज का वक्त था। कहते हैं नमाज पढ़ाने के लिए मुझे लोगों ने इमाम बना दिया। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने इमाम बना दिया। उठिए अली और आप नमाज पढ़ाइए। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और आपने नमाज के अंदर जब सूरह फातिहा की तिलावत कर ली, सूरह फातिहा की तिलावत करने के बाद उन्होंने कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह काफिरून की तिलावत की। सूरह काफिरून के बारे में आप जानते हैं कि ये हद्दे फासिल है, ये कुफ्र और शिर्क के और तौहीद और इस्लाम के बीच में खत्ते इम्तियाज खींचने वाली सूरत है। ये सरासर खुल्ला बाइकाट करने वाली सूरत है। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ऐ काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और जिनकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करते हो, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, जिनकी तुम इबादत कर रहे हो मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं हूं, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं हो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। एकदम क्लियर है। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने इस सूरत की तिलावत की तो पूरी सूरत के अंदर जहां जहां ला आया हुआ है, ला के माने होते हैं नहीं, ला अअबुदु मा तअबुदून, ला अअबुदु मैं इबादत नहीं करता, इस ला को उड़ा दिया। नशे की हालत में थे, नहीं पता क्या बोल रहे हैं। ला अअबुदु मा तअबुदून बोलने के बजाय क्या कहा, अअबुदु मा तअबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं भी उन्हीं माबूदों की इबादत करता हूं। यानी कुफ्र को तौहीद बना दिया, तौहीद को कुफ्र बना दिया। ऐसी आगे भी वला अना आबिदुम मा अबदतुम, यहां से भी ला खत्म कर दिया, व अना आबिदुम मा अबदतुम, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं भी उसी की इबादत करता हूं। इस तरह से पूरा मामला उलट गया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले शिर्क नहीं कर सकते। हजरत अली बिन अबी तालिब ने हर जगह से ला खत्म कर दिया, ला खत्म कर दिया। मैं उसी की इबादत करता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो, उसी लात की, उसी मनात की, उसी उस्सा की, उसी दीगर माबूदाने बातिला के जिनकी तुम इबादत करते हो मैं भी उन्हीं की इबादत करता हूं। इस तरह से पूरी सूरत को उलट दिया। बड़ा मसला पैदा हो गया कि ये तो बहुत उल्टी बात हो गई।
اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ اس طرح سے ہوا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے اور پورا الٹ دیا ہے، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں، ایسے بول دیا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے اور پریشان ہو کر کے بڑی بے چینی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں ہمیں واضح فرمان عطا فرما دے، کافی شافی فرمان عطا فرما دے، کوئی بے چینی نہ رہے، کوئی الجھن نہ رہے، ایک دم کلیئر فیصلہ چاہیے، واضح فیصلہ چاہیے، شراب پینا ہے یا نہیں پینا ہے، شراب پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں، ایک دم واضح فرمان نازل فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، شراب لوگ پی رہے ہیں، نماز کے اندر شرک کر رہے ہیں، کفر کی بات کر رہے ہیں، اس لیے واضح فرمان نازل فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف حکم نازل ہوا۔ اللہ اکبر، صاف حکم میں کیا کہا گیا؟ صاف لفظوں میں کہا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے، نشہ کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے۔ یہ آیت کریمہ اتری، صحابہ کرام نے اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا، جا جا کر کے گلیوں میں، مدینے کی آبادی میں، لوگوں کے گھروں کے سامنے اعلان کرنے لگے الا ان الخمر قد حرمت، سن لو شراب حرام کر دی گئی ہے، آج کی تاریخ سے کوئی شراب نہیں پیے گا۔ اتنا سننا تھا، حضرات صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں جا جا کر کے اپنے شرابوں کے مٹکے نکالے، شرابوں کے گھڑے اٹھائے اور اسے گھسیٹ گھسیٹ کر کے دروازوں کے باہر لا کر کے اسے نالیوں میں اڈیل دیا اور مٹکوں کو، گھڑوں کو توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو شراب حرام ہوئی ہے، یہ مٹکا تو حرام نہیں ہوا ہے، تم نے مٹکے کیوں توڑ دیے؟ شراب حرام ہے، شراب مت پیو، شراب کو پھینک دو، اسے ضائع کر دو، لیکن تم نے مٹکے کیوں توڑ دیے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مٹکوں کو نہیں توڑ دیں گے، اسے اپنے پاس رکھیں گے، استعمال کریں گے، تو ہمیں ان مٹکوں کو دیکھ کر کے شراب کی یاد آئے گی، اس لیے ہم مٹکوں کو بھی باقی رکھنا نہیں چاہتے، ہم نے اسے بھی ضائع کر دیا۔ یہ شراب کے بارے میں پس منظر ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شراب کے اندر گناہ بڑا ہے کہ نہیں؟ پوری طور پر منع نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی، اس کے اندر لا اعبد ما تعبدون کو اعبد ما تعبدون بول دیا اور پوری سورۃ الکافرون کو الٹ دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک واضح حکم آنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے چینی ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ تیسرا حکم آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ یہ سب، یہ شراب، یہ نشہ، یہ پانسے کے تیر، یہ استھان، یہ سب کے سب شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوه، اس لیے ان سب سے باز آ جاؤ، اجتناب کرو، بچو ان تمام چیزوں سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے تمہارے اندر دشمنی پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اور یہ چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس لیے تم باز آ جاؤ، باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو، آج سے شراب پینا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے، جوا کھیلنا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے، یہ پانسے کے تیر استعمال کرنا بند کرو گے کہ نہیں کرو گے، یا استھانوں پہ جانا بند کرو گے بتوں کے یا نہیں بند کرو گے۔ ایک دم صاف اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ توڑ کر کے پھینک دیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ شراب نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے، نشہ
हमारी अकल काम करना बंद कर देती है, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, हमारे सर घूमने लगते हैं, हमारा दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देता है, हमारा सर चकराने लगता है, हम ऐसा लगता है कहीं लुढ़क रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। और जो आदमी शराब पी लेता है मेरे भाइयों, पूरे तौर पर उसकी अकल काम करना बंद कर देती है। मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर नकल किया है, एक आदमी ने शराब पी लिया, नशे की हालत में है, होश में नहीं है, बदमस्त है, और वजू करने के लिए आदमी पानी इस्तेमाल करता है ना, लेकिन नशे की हालत में है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पागलों जैसी हरकत कर रहा है। बयान करते हैं इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, रिवायत नकल की है कि वो नशा आवर आदमी मेरे भाइयों नंगा हो करके, उसे कपड़े का पता नहीं है, पेशाब कर रहा था और पेशाब को अपने हाथ में उठा करके उससे अपना मुंह धो रहा था, और उसके बाद जब पेशाब का इस्तेमाल करके मुंह धो करके वजू करके फारिग हुआ तो अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल की नेमत से नवाजा है, 5 सलाहियतों को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई इस्लाम में सेव कर दिया। इंसान का दीन, इंसान का माल, इंसान की इज्जत, इंसान की अकल, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने, इंसान की आबरू, इन 5 चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर दिया है। ये अकल की हिफाजत का ये बहुत बड़ा कानून है कि नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम है। अब जरूरी नहीं है कि नबी के जमाने वाली शराब कोई पिएगा तो ही हराम है। हमने शुरू में आपसे कह दिया, मुनशियात का मतलब है नशा लाने वाली चीजें, खाने का सामान हो, पीने का सामान हो, चूसने का सामान हो, होठ के नीचे दबाने का सामान हो, चाहे सिगरेट तंबाकू की शक्ल में, तो सिगरेट बीड़ी की शक्ल में, उसे धुएं से फायदा उठाने की चीज हो, या पाउडर की शक्ल हो, टेबलेट की शक्ल में हो, इंजेक्शन की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, अगर नशा पैदा होता है तो इसी के हुक्म में है, क्योंकि असल मसला है नशा पैदा होना। जहां नशा पैदा हुआ वहां अल्लाह का हुक्म हराम आ गया। इस बात को याद रखो, कोई लाग लपेट का मसला नहीं, कोई घुमाओ फिराओ का मसला नहीं, साफ बात है मेरे भाइयों, जहां नशा है वहां हुर्मत। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 हदीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आप महसूस करेंगे कैसे कैंसर है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल खम्रु उम्मुल खबाइस मन शरीबहा लम तुक़बल लहू सलातुन 40 यौमन व मन शरीबहा वहिया फी बत्निही मात फमात मातमीतन जाहिलिया। 3 अल्फाज हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शराब के बारे में आए हुए हैं। शराब की गंदगी, उसकी खबासत, उसकी कराहत, उसकी कबाहत बयान करने के लिए 3 अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए। एक बात एक लफ्ज ये है, अल खम्रु उम्मुल खबाइस। सुन लो, शराब तमाम बुराइयों की, तमाम गंदगियों की मां है। जितनी खबीस चीजें हो सकती हैं, जितनी पलीद चीजें हो सकती हैं, जितनी गंदी चीजें हो सकती हैं, जितनी बुरी चीजें हो सकती हैं, जितनी घिनौनी चीजें हो सकती हैं, पलीद चीजें हो सकती हैं, उन सब की मां शराब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स शराब पी लेगा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। जो आदमी भी नशा कर लेगा 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। हाँ, याद रखो, अभी आएगी बात। गोवा, गुटखा, खैनी, नशवार, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, है ना, ऐसे ही हशीश, भांग, जितनी चीजें हमारे आपके समाज में इस्तेमाल होती है, याद रखो ये सब नशा लाने वाली चीज है। जो आदमी पीने का आदी हो गया है, जो आदमी खाने का आदी हो गया है, जो उसका पियक्कड़ हो चुका है, आदी हो चुका है, उसे नहीं पता चलेगा नशा आता है कि नहीं आता है। लेकिन एक साफ सुथरा आदमी, एक मासूम आदमी जिसने कभी भी नशे का इस्तेमाल नहीं किया है, एक साफ आदमी, उसको पिला के दिखाओ, उसको खिला के देखो, उसको मेरे भाइयों सुंघा के देखो, उसको टेबलेट खिला के देखो, उसका हाल क्या होता है, उसका एतबार किया जाएगा। जो आदमी नशेड़ी हो चुका है उसका एतबार नहीं किया जाएगा।
क्योंकि आदमी जिस चीज का आदी हो जाता है उसका असर नहीं लगता। एक आदमी शुरू में एक सिगरेट से उसका सर घूमने लगता है, फिर धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है, तो वो चैन स्मोकर हो जाता है। उसको 2 में मजा नहीं आता, 3 में मजा नहीं आता, 4 में मजा नहीं आता, वो 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट इस्तेमाल करता। यही मामला शराब का है। जो लोग शराब के रसिया हो जाते हैं, पियक्कड़ हो जाते हैं, उनको मेरे भाइयों 1-2 से नशा नहीं आता, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए एतबार उनका नहीं है जो नशेड़ी हो चुके हैं, जो पियक्कड़ हो चुके हैं, जो आदी हो चुके हैं। एतबार किसका है? एतबार एकदम शफाफ आदमी का है। इसलिए कभी भी आज तक अपने मुंह से कोई नशा लाने वाली चीज को न लगाया हो, ऐसे शख्स का एतबार किया जाएगा, है ना? इसलिए इस बात को याद रखें। मैं आज क्या कहना चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम गंदगियों की मां है। जो उसे पी लेगा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। नशा करने वालों, शराब और शराब के नाम के अलावा दीगर चीजों को पी के खा के नशा करने वालों, याद रखो पी लोगे 40 दिन तक तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। और क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने? वमन शरिबहा वहिया फी बत्निही फमात मतमीततन जाहिलिया, जो शराब पी लेगा और उसकी शराब उसके पेट में रहेगी, उसी हाल में उसकी मौत हो जाएगी, तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। कितना खतरनाक मसला है भाई। इतना आम है आज शराब, इतना आम है। और बहरहाल मुझे सर्वे पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, मुझे किताब और सुन्नत के दलाइल से थोड़ी सी बात करनी है आपके सामने। एक हदीस आपने सुनी, दूसरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खम्रु उम्मुल फवाहिश, शराब तमाम बेहयाइयों की मां है। ज़िनाकारी, बदकारी, फहाशी, बेपर्दगी, उरियानियत, बदज़बानी, गाली गलूच, जितनी फहाशी की चीजें हो सकती है, इन सब की मां है शराब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आगे क्या फरमाया? आपने फरमाया मन शरिबहा वक़ा अला उम्मिही व खालतिही व अम्मतिही, जो आदमी शराब पी लेता है उसे नहीं पता चलता कि वो कहां जा रहा है। वो अपनी मां से भी ज़िनाकारी कर सकता है, अपनी खाला के ऊपर भी आ सकता है, अपनी फूफी से भी बदकारी कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमको आपको डराने के लिए है। बाज आ जाओ उम्मत के लोगों, शराब को अपने गले ना लगाओ, वरना इतना खतरनाक जुर्म है ये, सारी गंदगियों की मां। तीसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तशरबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, शराब ना पियो उम्मत के लोगों, शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब सारी बुराइयों की मां, सारी बुराइयों की कुंजी है। एक बुराई, 2 बुराई, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इतना सारा गुनाह करने के लिए आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन शराब अगर पी लेगा, नशा अगर कर लेगा, तो बड़ी आसानी से 2, 4, 6, 10, 20 गुना बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि शराब पीने से कुंजी उसके हाथ में आ गई। इसको मैं आपको एक रिवायत से वाज़ेह करता हूं। रिवायत हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम सईद इब्न मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया है, रिवायत हसन दर्जे की। सुनना जरा गौर से। उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़े को बयान किया है, माजी पिछली उम्मत बनी इस्राइल, यहूद, नसारा के जमाने की बात, नसारा के जमाने का वाक़या। कहते एक शख्स को किसी ने कहा, भाई तुम्हारे सामने इतने सारे काम हैं, ये देखो ये किताब है इंजील या तौरात, इसे आग लगाना है, ये बच्चा मासूम है इसे कत्ल करना है, ये औरत है इसके साथ बदकारी करनी है, ठीक है, और ये एक शराब का जाम है, एक गिलास, इसे पी लेना है। तुम इनमें से कौन सा काम करोगे? शराब का जाम पियोगे, बच्चे को कत्ल करोगे, अल्लाह की किताब को आग लगाओगे, औरत के साथ बदकारी करोगे, क्या करोगे?
उस आदमी ने शराब का जाम उठा लिया। उसने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, कैसे कत्ल करूंगा मैं किसी बच्चे को, कत्ल करूंगा तो मेरा हाल क्या किया जाएगा, मुझे सजा मिलेगी, उसकी बदकारी करूंगा सजा मिलेगी, मुझे किताब को फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, मुझे उसकी सजा मिलेगी, इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। हाँ, ये एक गिलास में जो शराब रखी हुई है ये आसान है, इसको पी लेता। शराब पीने से कोई रोकने नहीं आएगा, इसलिए उसने शराब पी लिया। एक गिलास पी लिया और जब शराब पी लिया उसकी अक्ल खत्म हो गई, तो उसने औरत से ज़िनाकारी भी की, बच्चे को कत्ल भी कर दिया और किताब को आग भी लगा दिया। देख लिया कि नहीं देख लिया आपने? शराब सारी बुराइयों की जड़ है, सारी गंदगियों की कुंजी है, सारे शर्र फसाद की कुंजी। शराब पी लिया, सारे काम कर डाला, इसलिए सारी बुराइयों की मां है, सारी बुराइयों की जड़ है, कुंजी है, चाबी है मेरे भाइयों। इसलिए बात को समझो, ये शराब बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों में इस हवाले से बहुत सारी तालीमात दी गई हैं, बहुत सारी तालीमात है, बहुत सारी हिदायत है। और एक बात खास तौर पर मुझे आपके सामने रखना है, वो ये है शराब के सिलसिले में खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तज़हबुल अय्यामु वल लयाली, ला तज़हबुल अय्यामु वल लयाली हत्ता तशरब ताइफतुम मिन उम्मतिल खम्रा युसम्मुनहा बिगैर इस्मिहा यस्तहिल्लूनहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दिन रात खत्म नहीं होंगे, दिन रात खत्म नहीं होंगे, ये दिन आना जाना, ये रात का आना जाना, यानी दुनिया कायम है। जब ये रात का आना जाना बंद, दिन का आना जाना बंद, इसका मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इसका माना यह है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, रातों दिन का आना जाना बंद नहीं होगा, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत का एक तबका शराब को दूसरा नाम दे करके नहीं पिएगा, उसका नाम बदल करके नहीं पिएगा, नाम बदल देगा, उसको हलाल समझ करके जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए इस पेशीन गोई पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने कह दिया क़यामत नहीं आ सकती जब तक कि मेरी उम्मत का एक तबका ये काम ना करे, शराब को नाम बदल करके ना पिए, उसको नाम बदल करके उसको हलाल समझ करके ना पिएगा, ना इस्तेमाल करेगा, तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। देखो दुनिया के अंदर क्या हाल है, कितने आइटम है दुनिया के अंदर, कितने मुरक्कबात हैं जिनको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सामान हैं पिए जाने वाले, खाए जाने वाले और सूंघे जाने वाले, चूसे जाने वाले, टेबलेट की शक्ल में लिए जाने वाले, या ऐसे ही मेरे भाइयों इंजेक्शन की शक्ल में लिए जाने वाले, ऐसे 500 पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल करके दुनिया में लोग नशा करते हैं। हिंदुस्तान पीछे नहीं है, मुसलमान भी पीछे नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खम्रा युसम्मुनहा बिगैर इस्मिहा। मेरी उम्मत के कुछ लोग, मेरी उम्मत के कुछ लोग जरूर भी जरूर शराब पिएंगे, युसम्मुनहा बिगैर इस्मिहा, उसे उसके नाम के अलावा नाम देंगे, उसको शराब नहीं कहेंगे, कोई उसको कहेगा एनर्जी ड्रिंक है, इससे चुस्ती आती है, इससे दिमाग खुल जाता है, इससे दिमाग बहुत काम करता है, इससे ताकत बढ़ जाती है, इससे स्टैमिना पैदा होता है, इससे एनर्जी पैदा होती है। इस तरह के नाम दे दे करके लोगों ने शराब को हराम किया हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, ये बड़ा खतरनाक मसला है, शराब का मसला। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो शराब पी जाती थी वो शराब आज हमारे सामने नहीं है।
اس کے علاوہ اس سے کہیں گنا زیادہ نشہ پیدا کرنے والے بہت سارے سامان دنیا میں وجود میں آ گئے، جس کا استعمال کر کے دنیا کے بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں، سب کے سب ایک حکم کے ساتھ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اب آج ہمارے بیچ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا۔ کوئی شراب کا نام چائے رکھے تو کیا وہ شراب چائے بن جائے گی؟ کوئی شراب کا نام زمزم رکھ دے تو کیا وہ زمزم بن جائے گا؟ میرے بھائیوں، شراب کا نام بدلنے سے، شربت رکھنے سے وہ شربت نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا۔ نام بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا۔ جب تک وہ نشہ پیدا کرتا ہے تب تک وہ حرام ہے۔